Sukhjit ma'am, please allow me for sharing my screen. You can share, ma'am. I have allowed. Okay. ठीक है जी, आ गया. Thank you. I think up to this part, I think we had done yesterday, question number 28 तक. अगर ये रह भी गया होगा तो I think I sent its picture also. This is quite simple question. Today I just want to complete this work by coming directly to miscellaneous question, because every type of question we have already attempted. Now miscellaneous question में again for example purpose few questions we do, then we will go to the next lesson. Okay, so you please see, according to my book it is question number 47, miscellaneous question. From the given data below about an economy, calculate first part investment expenditure and the second part consumption expenditure. ठीक है, ये दो चीजें निकालनी है. And what has been given, equilibrium level of income ये दिया हुआ है, and autonomous consumption and MPC, these three things are given. ठीक है, पॉइंट में करके दिया हुआ है. Don't worry, it's very easy and simple. तो सबसे पहले आप देखो निकालना क्या है हमने, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके बाद नाउ यू प्लीज पे अटेंशन टू द थिंग्स विच आर गिवन. ऑल दीज थ्री थिंग्स आर रिलेटेड टू कंजम्पशन फंक्शन. हमें उससे रिलेटेड वैल्यूज ही दे दी हुई है. तो वी विल जस्ट डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विद this part, consumption function. Let us write consumption function. C is equal to A plus BY. A की वैल्यू is already given, कितनी है autonomous consumption 500, तो यहाँ फिल कर लिया, पुट कर दिया 500, प्लस B means consumption function में B का मीनिंग होता है MPC, तो MPC is also given in the question, that is 0.4, तो यहाँ 0.4. Then Y, equilibrium level of income, that is also given 5000, तो यहाँ पे in place of Y we can substitute the value of Y 5000. When we solve this we get consumption is equal to rupees 2500. यहाँ रुपीज कुछ नहीं दिया है तो एज इट इज भी इसको छोड़ सकते हैं, तो ये 2500 ये हो गया हमारा. दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट पूछा है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. नाउ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए नाउ वी नो वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स कि अगर हमें बिकॉज इनकम इज गिवन, कंजम्पशन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो एनी हाउ वी कैन डायरेक्टली दिस कैलकुलेट सेविंग, एंड देन whatever saving comes that is equal to investment. तो यहाँ पे we can calculate saving first. तो formula क्या हो सकता है, saving is equal to income minus consumption. ठीक है, Y minus C. Now Y की value is given in the question 5000, statement में ही दिया हुआ है 5000, minus C we have calculated 2500, ये put कर दिया 2500. Now we are left with saving is equal to, saving is also 2500. ठीक है. Now you need to write two words, at equilibrium level of income savings are equal to investment. So if saving is 2500, that means it is also equal to investment. Saving is equal to investment is equal to 2500. बस ये साथ में ये जरूर लिख देना है, we know that at equilibrium level savings are equal to investment. ठीक है, very simple question. Now you please see question number 50. 50th question. Calculate investment from the following, and given है equilibrium income दिया हुआ है, consumption expenditure at zero income and MPC. Now equilibrium income means value of Y is given, consumption expenditure at zero income, that means autonomous consumption. ठीक है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स इनडायरेक्टली दिए हुए हैं. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम मींस autonomous consumption, that is given 50, and MPC is given 0.7. So again, firstly we should try to make this consumption function. C is equal to A plus BY. C is equal to, in place of A we can write its value 50 plus B दिया हुआ है 0.7, Y की जगह Y की value is also given, equilibrium income 500. तो ये करके we get consumption is equal to 400, same जैसे ऊपर किया था. Then we will calculate saving. Savings are equal to income minus consumption, that is 500 income already given in the statement, minus ये consumption we have
फाउंड आउट 400, ये आ गया सेविंग्स इज इक्वल टू 100. फिर आप यहाँ पे अगेन यू विल राइट दैट एट इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू ₹100. रुपीज लिखा हुआ है, हाँ रुपीज लिख लेना, ₹100. Same type of questions are there. So this we can do in this manner. Then let us do question number 51st question. 51st question में ये थोड़ा सा डिफरेंट है वैसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है. कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये MPC is to be calculated. ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क है ये. और दिया क्या हुआ है हमें, इक्विलिब्रियम इनकम 350 रुपीज ये दिया हुआ है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम, दैट मीन्स ऑटोनमस कंजम्पशन इज गिवन, एंड इन्वेस्टमेंट 50 रुपीज ये दिया हुआ है. जो भी दिया हुआ है आपने उसकी हेल्प से हमने पहले रफ काम में आपने करके देखना कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन. फिर अपने जो मेन पूछा हुआ है फिर उसके ऊपर हमने इन वन और द अदर वे वी हैव टू रीच एट दैट प्लेस. ठीक है जी. So now we can write it in this manner that at equilibrium level, aggregate demand is equal to aggregate supply, या AS is equal to AD. In place of AS we can write Y, and in place of AD इसके जो components हैं C plus I we can write there. Now put value of Y and other values, जो भी value given है we can substitute. Now in place of Y given value is 350, तो यहाँ लिख दिया 350 is equal to ये दिया हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल. ठीक है, तो पहले यहाँ पे आपने कंजम्पशन एक वो बनाना है फंक्शन C इज इक्वल टू A प्लस BY. ऑटोनमस कंजम्पशन दिया हुआ है जीरो लेवल इनकम के ऊपर कंजम्पशन दैट इज 20 प्लस B. MPC निकालना है, वो हमें नहीं पता है. ठीक है, इनटू यहाँ Y के जगह पे Y की वैल्यू कितनी है 350, वो पुट कर दिया, मतलब हमने कंजम्पशन फंक्शन बना लिया. नाउ इन प्लेस ऑफ दिस C, ये वाला जो C है, in place of this C, this means consumption function. Let us write the values of consumption function. जो इधर लिखा हुआ है 20 plus 350B. ठीक है, B आगे लिखना है तो भी ठीक है, पीछे लिख दो तो भी ठीक है. B stands for MPC. प्लस ये वाला इन्वेस्टमेंट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 50, ये यहाँ लिख दिया 50. ठीक है जी. अब नंबर्स को वी कैन ऐड 50 प्लस 20, ये हो गया 70. चाहे तो आप सीधा 70 इधर माइनस कर दो, या ऐसे ही आप इधर लेके आना चाहते हो 350, ये 20 इधर आके माइनस हो गया, ये 50 इधर आके नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया. एंड ऑन दिस साइड वी आर लेफ्ट विद 350B. ठीक, अब B को रहने दो इधर और 350 इधर आके डिवाइड कर देगा. ये सारा जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा B इज इक्वल टू 0.8. ठीक, नाउ B क्या है, B स्टैंड्स फॉर MPC एंड दिस वाज आवर क्वेश्चन. सो B और MPC इज इक्वल टू 0.8. बस इसको सर्कल कर दीजिए, दिस इज अवर आंसर. ठीक है, मतलब ये है कि हमें जो कंजम्पशन फंक्शन है ना, कई बार हमें इन सम ऑफ द क्वेश्चंस यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ A. कई बार पूछ लिया जाता है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस B MPC, मतलब कोई एक वैल्यू निकालनी है, रेस्ट ऑल द वैल्यूज विल बी गिवन. तो सिंपल आपने पुट कर देना सारी वैल्यूज, जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड पे ले आओ इक्वेशन के, बाकी जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं. ठीक है जी. चलो आई थिंक एक और क्वेश्चन है, लेट मी शो दैट आल्सो. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 54 एंड 52 है. 54 कर लेते हैं पहले. 54th क्वेश्चन लास्ट वाला, कैलकुलेट MPC फ्रॉम द फॉलोइंग, इसी टाइप का है. और गिवन क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम, दैट मींस ऑटोनमस कंजम्पशन इज गिवन 70 रुपीज, एंड इक्विलिब्रियम इनकम Y की वैल्यू भी दिया हुआ है 700, इन्वेस्टमेंट भी दिया है 140. तो फिर हमने क्या करना है, वैसे ही जैसे पहले किया, एट इक्विलिब्रियम लेवल एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, एंड इन प्लेस ऑफ दिस AS, उसका जो टेक्निकली हम टर्म्स यूज करते हैं Y इज इक्वल टू AD की जगह उसके पार्ट्स C प्लस I. ठीक, देन ऑन वन साइड फर्स्टली यू मेक दिस कंजम्पशन फंक्शन, इसको बना लेते हैं. C इज इक्वल टू A प्लस BY. A means autonomous consumption and what is that 70, it is given, plus B दिया हुआ है, नहीं B नहीं दिया, ये निकालना है, B को ऐसे लिखते हैं. Y is given, yes it's given 700, ये लिख दिया 700. तो B means MPC, ये निकालना है. ठीक है, अब क्या करना है, now coming to this side, whatever values are available let us substitute them. Y की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 700, लिख दिया यहाँ पे, ये इक्वल टू का साइन. नाउ इन प्लेस ऑफ दिस C, ये कंजम्पशन फंक्शन है, तो इसकी जगह ये कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू लिख दी हमने, ये लिख दिया 70 प्लस 700B.
प्लस इन्वेस्टमेंट इज गिवन, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 140, ये 140, ठीक है जी। अब नंबर्स को सबको आप एक तरफ ले आओ, जो निकालना है उसको 700 बी उसको एक तरफ रख लो, चाहे आप लेफ्ट साइड पे लिख लो, हार्डली मैटर्स, इक्वेशन के दोनों और इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो ये सारा करके बी निकालना है, तो ये हमारा अल्टीमेटली आ जाएगा, इधर आया 400, ये आ गया हमारा कितना आ गया 490, सॉरी 490 डिवाइडेड बाय 700, सब कुछ कर कर आके अल्टीमेटली वी विल बी गेटिंग MPC इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। कैलकुलेशन तो इतनी तो आपने की हुई है, ये कर सकते हैं 0.7, बाद में इसको सर्कल कर दीजिए, दिस इज अवर आंसर, ठीक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू टेल, बाकी सारे ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ द सेम टाइप्स, so now you all have to try yourself, but one other thing, before coming to the exercise part, please go through solve all the solved examples first, because हमें उससे डायरेक्शन मिल जाती है, हमें हेल्प पता चल जाती है, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर पॉइंट कोई हो तो वी कम टू नो एग्जांपल सॉल्व करके, that boosts our confidence level also, then very easily we will be able to cover all these questions, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो ना, तो हो सकता है कोई पॉइंट दिया हुआ है आपको ना समझ में आए, अदरवाइज मैंने समझाए सारे, बट स्टिल देयर इज नो एंड टू एनीथिंग, ठीक है। तो आप बेटर होगा पहले सॉल्व क्वेश्चंस करें। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन, 50 सेकंड, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। हाँ, अब ये थोड़ा डिफरेंट है, अब हमने यहाँ पे y निकालना है, और गिवन क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम, दैट मीन्स A इज गिवन, autonomous consumption is given 40, MPC is given 0.8, investment is given 80, ये दिया हुआ है। तो let us firstly try to make consumption function with the help of this available information. Now we know C is equal to, consumption function is equal to A plus BY, तो A है 40 प्लस B है हमारे पास 0.8, Y को ऐसे लिख लिया, बिकॉज Y ही तो निकालना है, तो Y को ऐसे लिख लेंगे। नाउ इस साइड पे, नाउ एट इक्विलिब्रियम लेवल, या लिख लेना एट इक्विलिब्रियम लेवल, AD इज इक्वल टू AS या AS इज इक्वल टू AD, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ AS वी कैन यूज इट्स अदर नेम Y, और AD की जगह इसके दूसरे नाम, इसके जो कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन फंक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट फंक्शन, वो लिख दिया। नाउ Y ऐसे लिख के C की जगह पे ये C फंक्शन की वैल्यू को पुट कर दे, 40 प्लस 0.8 Y प्लस इन्वेस्टमेंट इज गिवन, कितना दिया हुआ है, प्लस ये 80। अब सारे नंबर्स हमारे एक तरफ कर लो, 40 प्लस 80 ये हो गया 120, और ये 0.8 Y, लेट अस ब्रिंग दिस वैल्यू टू द लेफ्ट साइड, ये आ गया Y, ये वाला Y, ये 0.8 इधर आके माइनस हो गया, माइनस 0.8 Y, ठीक है जी। तो 1Y में से 0.8 Y निकाल दे तो बच गया 0.2 Y इज इक्वल टू 120, Y इज इक्वल टू ये 0.2 इधर आके डिवाइड कर देगा, एंड वी विल बी गेटिंग इनकम इज इक्वल टू ₹600, करोड़ है, करोड़ नहीं है, ओनली ₹600, ठीक। तो आपको ऐसे ही, मतलब आपने मेन ये चीज को ध्यान में रखना है, AD इज इक्वल टू AS या AS इज इक्वल टू AD, इक्विलिब्रियम का। सेकंड, आपने कोई सेविंग इन्वेस्टमेंट टाइप वाला हो तो उसमें याद रखना है सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बाकी कोई और C प्लस आई, कंजम्पशन, इनकम, इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ हो तो उसका मतलब AD AS वाला फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा, ठीक। सो विद ऑल दीज थिंग्स you will be in a position to solve all the questions very easily. Still, if you face any difficulty in any of the question, firstly discuss among your friends. फिर भी नहीं पता चलता है, कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे टेक्स्ट अपना व्हाट्सएप पे आप स्टेटमेंट अपना करके ना, पिक्चर उसके करके वो भेज देना, मैं सॉल्व करके सभी को ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक। बट उसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप करो ही ना, यू ट्राई योर बेस्ट, खुद कोशिश करो, नहीं निकलता देन यू सेंड मी, टेल द क्वेश्चन। चलो जी, with this we have been able to cover this lesson. It was very long lesson. Now let us come to next chapter. This is comparatively easy. और ये सारा हमारा, ये फ्रूट वेंडर को आपके साथ बहुत प्यार है, जैसे ही आपकी क्लास शुरू होती है तो ये अपने सेब के लिए बेचने शुरू कर देता है। Anyhow, now ये जो next lesson है, this is the repetition of all the things which we have done previously. बस अब हमने उसको, जिसको बोलते हैं ना मेक ओवर करना, थोड़े से चेंजेस हियर एंड देयर उसको असेंबल कर देना। नाउ दीज थिंग्स आर टू बी डन, सो लेट अस स्टार्ट। वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग लेसन। यस, चैप्टर का नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, नाउ इन द प्रीवियस चैप्टर, ये जो भी किया है इनकम डिटर्मिनेशन, उसमें एक पार्ट में हमने किया था, after doing this equilibrium between AD, AS and saving investment, then we have discussed one thing,
दैट की जो इक्विलिब्रियम है वो इट इज नॉट नेसेसरीली कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ AD एंड AS it is not necessary that there will always be full employment in the economy. Equilibrium can take place anywhere. At that time जब equilibrium हो रहा है there may be full employment and there may not be full employment. ठीक है, जब तो full employment है तब तो that is an ideal situation, तो बहुत ही अच्छी बात है, no problem, सबको काम मिल रहा है, everybody is busy, that is an idealistic situation. But in reality what has Keynes said कि भाई इतनी idealistic situation does not exist always in the practical life. आइडियलिस्टिक हम मानते तो हैं बहुत अच्छा है, बट इन रियल लाइफ वो हो नहीं पाता है. जैसे हम कहते हैं ना हमारे 100 में से 100 मार्क्स आए, अब हमेशा हो थोड़ी पाता है ऐसे, कई बार मार्क्स कम हो जाते हैं, कई बार बढ़िया आ भी जाते हैं, मतलब एवरी टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज देयर. तो नाउ ही इज सेइंग कि भाई अगर तो फुल एम्प्लॉयमेंट है बहुत ही अच्छी बात है, बट ही सेज दैट इन रियलिटी फुल एम्प्लॉयमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम डज नॉट एग्जिस्ट. तो देन व्हाट डज एग्जिस्ट, होता क्या है फिर? तो दो सिचुएशंस आर पॉसिबल. या तो हो सकता है कि इक्विलिब्रियम हमारा AD/AS का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही हो जाए या उसके बाद में हो जाए. ठीक है, तो अगर इफ अवर इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस बिफोर द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट देन दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, जो पीछे किया था. और अगर हमारा इक्विलिब्रियम होता है आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल देन दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल. ठीक है जी, बस अब वही दो सिचुएशंस है, उन्हीं को हमने वी हैव टू रीड देम अगेन. फर्स्ट है एक्सेस डिमांड, कि अगर इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले हो जाए तो क्या होगा, अगर उसके बाद हो तो क्या होगा. ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट सिचुएशन, एक्सेस डिमांड. एक्सेस वर्ड से क्लियर, एक्सेस मतलब जरूरत से ज्यादा, तो किस जरूरत से ज्यादा, किसके कंपैरेटिवली ज्यादा. तो नाउ एक्सेस डिमांड मींस दैट सिचुएशन when aggregate demand, you can see in the book also, when aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment level of equilibrium. मतलब सिंपल वर्ड्स में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरेटिवली. एग्रीगेट डिमांड का यहाँ पर मीनिंग वी नो वेरी वेल. एग्रीगेट डिमांड मींस डिमांड, प्लान्ड डिमांड विच इज बीइंग डिजायर्ड, सोच रहे हैं लोग, अभी किया नहीं है. People are just thinking to go to market and buy different things. ठीक है, तो what all the people are thinking, जितने भी इकोनॉमी में सारे कंज्यूमर्स हैं, सारे लोग हैं, what all the people are planning, they are desiring, they are wishing to buy all types of goods and services. ये मीनिंग है ना AD का, डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी इन वन ईयर. तो जो कुछ भी लोग सोच रहे हैं सब कुछ लेने के लिए, सारे ही लोग, एक और ध्यान में रखना है, सारी चीजों की डिमांड नहीं करते हैं. आप और मैं, हम आमतौर पे पढ़ने लिखने वाले जो कम्युनिटी के लोग हैं, तो हमारी डिमांड क्या ज्यादा होगी, बुक्स की, कॉपियों की, पेन पेंसिल की. इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम लोगों की इस तरह की ज्यादा डिमांड है. अब सोच के देखो, कोई फार्मर है, कोई फार्मिंग का काम करते हैं, उनको थोड़ी कॉपी पेंसिल की जरूरत है, उनको डिमांड होगी फार्मिंग के काम से रिलेटेड सामान की, ट्यूबवेल की, पाइप की, फर्टिलाइजर की, सीड की, और जो फार्मिंग के काम में चीजें आती हैं. बट इकोनॉमी में तो हम सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं ना, पढ़ने वाले लोग भी हैं, पढ़ाने वाले भी हैं, फार्मर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और प्रोफेशनल्स भी हैं. तो सभी को अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग चीजों की जरूरत होती है. बट हम लोग जब व्हेन वी टॉक अबाउट दिस AD, तो इसका मतलब है सब लोगों की हर एक तरह की डिमांड को मिला के सबको इकट्ठा करते हैं. ठीक है, तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड सीम्स टू बी मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, उससे ज्यादा हो, प्रोड्यूसर्स उतना बनाने की नहीं सोच रहे हैं जितना लोग डिमांड करने की सोच रहे हैं. ठीक है, और ये किस रेफरेंस में, क्योंकि विदाउट रेफरेंस बात नहीं बनेगी, तो ये विद रेफरेंस टू दैट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम या दैट लेवल ऑफ इनकम जहाँ पे हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है. मतलब इस चीज के रिलेशन में, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके रिगार्ड से, इसको ध्यान में रखते हुए, अगर इकोनॉमी में डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, then the situation which arises as a result of this, that situation is called excess demand. ठीक है, जरूरत से ज्यादा डिमांड. अब क्या होता है, ये तो मैंने वही लिख दिया जो भी बोला है. अब इसको लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली. इसका कोई टेबल नहीं है, ओनली डायग्राम. ये भी रिपीटेड है, पहले किया हुआ है. तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यहाँ हम दिखा रहे हैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम, पूरा लिख रहे हैं आउटपुट. ठीक है, तो यहाँ पे इनकम, आउटपुट लेवल, मतलब ऑल दीज थ्री थिंग्स आर सेम इन वन वे.
जितने लोगों को काम मिला उतनी उन्होंने इनकम जनरेट की, उतना ही उन्होंने फिजिकल फॉर्म में आउटपुट बनाया। तो ऑल दीज थिंग्स मीन द सेम। तो अब क्या था हमारा कॉन्सेप्ट जो पहले किया, ये एग्रीगेट सप्लाई की लाइन, ये वाली लाइन अप टू दिस लेवल इट इज इंक्रीजिंग। जब तक सब लोगों को काम नहीं मिला हुआ है, पीपल आर स्टिल गेटिंग वर्क, तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेस। व्हेन दैट एट दिस ओएल लेवल, इतने लोग हैं इकोनॉमी में, इतनी रिसोर्सेज हैं, ऑल हैव गॉट वर्क and all are producing their best possible, then aggregate supply becomes constant. मतलब ये इतना ही बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। then it becomes constant, मतलब ये जितनी है, ये अगर 100 चीजें बना रहे हैं तो 100 ही रहेगा, बस ये एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट हो जाती है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब सेकंड है हमारा इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? ये वाली लाइन, ये जो फर्स्ट एडी की लाइन है। नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। B is the point of full employment equilibrium। ठीक, अच्छा, अब एक्सेस डिमांड, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये केन्स की थ्योरी है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में इस डिमांड से भी ज्यादा डिमांड हो जाती है, इतनी तो है ही है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बट इन केस एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स दिस लेवल, इससे भी ज्यादा लोग बहुत चीजों की डिमांड करते हैं, तो देन व्हाट विल हैपन टू एडी लाइन? इट विल शिफ्ट अपवर्ड। जब ज्यादा दिखाना होता है तो ऊपर अपवर्ड हो जाता है, कम दिखाना हो तो इसके नीचे दिखाएंगे। तो अब ये डिमांड हमारी ज्यादा है। अब क्या हो गया? नाउ इक्विलिब्रियम इज टेकिंग प्लेस एट दिस ए पॉइंट। इक्विलिब्रियम की शर्त वही है जहां एडी एएस इक्वल। तो अब यहाँ पर ये एएस की लाइन है, ये एडी की, दे आर बिकमिंग इक्वल एट दिस पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये वाला है, ए पॉइंट, सॉरी बी पॉइंट, और एक्चुअल में ज्यादा डिमांड वाला जो इक्विलिब्रियम है वो ये वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है इक्वल टू ए बी, ये जो ब्रैकेट सा लगाया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज शोइंग दैट देयर इज एक्सेस डिमांड। इतनी डिमांड ज्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी इतनी ज्यादा ए बी के इक्वल डिमांड ज्यादा है। ठीक है, अब जब ये डिमांड ज्यादा हो रही है, और दूसरी ओर हम क्या देख रहे हैं, जितनी आउटपुट ये ओएल लेबर बना सकती थी वो ऑलरेडी बना रहे हैं। अब सोच के देखो, कोई दिन में 24 आवर्स तो नहीं ना काम कर सकता, नॉन स्टॉप तो नहीं मशीनें चलाई जा सकती 24/7 और इंटू फुल ईयर, लगातार तो नहीं, वो बीच में ब्रेक भी तो होगा। तो जो भी फैक्ट्री वाले, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो इतनी लेबर को लगा के, या इतने इंक्लूडिंग मशीनें, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, सबको लगा के वो फुल उनका बेस्ट ऑप्टिमल आउटपुट दे आर टेकिंग फ्रॉम देम, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। इतनी ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, उतने उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जब इतनी ही प्रोडक्शन हो रही है, मान लो 100 चीजें ही बन सकती हैं और बनाई जा रही हैं, और डिमांड 100 से ज्यादा चीजों की हो रही है, तो अब आप सोचो फिर क्या होगा इकोनॉमी में। मैक्सिमम 100 चीजें बन सकती हैं, और लोग पर फिर भी जाई जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर डिमांडिंग मोर, नहीं और सामान चाहिए और चाहिए, मान लो 120 चीजों की डिमांड कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट ये होगा दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड एक्सेस डिमांड, और उसके रिजल्ट के तौर पे क्या होगा? देयर विल बी इन्फ्लेशन। आपको वैसे ही पता है, जब भी सप्लाई कम हो और उसकी कंपैरेटिवली डिमांड ज्यादा हो जाए, तो चीजें नॉर्मली एक्सपेंसिव हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। वही चीजों के एक्सपेंसिव होने को ही इकोनॉमिक्स में कह दिया जाता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो रहा है, या उसी को कह देते हैं इन्फ्लेशन हो रहा है, या उसी को और आम बोलचाल में कह देते हैं महंगाई हो रही है। ठीक है, अब ये जो गैप है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। इसका कुछ नाम रखना है हमने। ये इन्फ्लेशनरी गैप क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ डिमांड। कितना एक्सेस है डिमांड का? ये ए बी के इक्वल। सो दिस ए बी इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप, और इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेस डिमांड। ठीक है जी, इतनी फालतू डिमांड है, एक्स्ट्रा डिमांड है, तो ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा डिमांड इन्फ्लेशन हो रहा है, और ये गैप का नाम रख दिया इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक, तो अब ये इन्फ्लेशनरी गैप किसका इफेक्ट है, किसका रिजल्ट है? इट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सेस ऑफ डिमांड। ठीक, अब क्या है? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स रीजंस, भी क्यों होता है। अब ये हो गया तो क्यों हो रहा है, तो ये हो क्यों रहा है, इसका मतलब आप ध्यान से देखो कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो तो बेचारी कांस्टेंट है, वो कुछ नहीं कर रही, वो जैसी है वैसी है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई एक पैसिव फैक्टर है, वो चुप करके बैठी हुई है, इतनी बस कहते हैं इतनी बना सकते थे, बना दिया जी, अब और क्या करें। तो एक्टिव रोल कौन प्ले कर रहा है? एक्टिव रोल ये चीज प्ले कर रही है एग्रीगेट डिमांड। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, आप चुपचाप सुन रहे हो, आपका रोल पैसिव है, मैं लगातार बोले जा रही हूँ, मेरा रोल एक्टिव चल रहा है इस समय, है ना। मैं आपको कोई काम दे के आप चुप करके बैठ जाओ, देन यू विल बी प्लेइंग एक्टिव रोल एंड आई विल बी पैसिव एट दैट टाइम। तो सेम थिंग इज हियर कि एग्रीगेट सप्लाई तो जितनी थी उतनी ही है,
एक्टिव रोल, डोमिनेंट रोल इज बीइंग प्लेड बाय दिस एडी। तो अब इसका मतलब कि एडी को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनमें अगर कुछ चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज आता है, तो दोज रीजंस विल बी द रीजंस ऑफ दिस एक्सेस ऑफ डिमांड, क्योंकि यही ज्यादा आगे आगे होके इसका ही इफेक्ट आ रहा है ना। तो अब हम देखेंगे कि इसके रीजंस में, लेट अस स्टार्ट। रीजंस जो हैं वो जो चीजें भी एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती हैं वही हमने पॉइंट्स यहाँ पे बता देने हैं। नाउ यू प्लीज सी इन द बुक। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं रिक्वायर्ड है, बस ब्रीफ लाइंस की एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको समझा पूरा दूंगी बट पेपर में थोड़ा थोड़ा ही लिखना है। सो फर्स्ट रीजन है कि एग्रीगेट डिमांड क्यों ज्यादा होती है, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बुक से ही बता रही हूँ। फर्स्ट इज राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक मिनट। तो राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो एग्रीगेट डिमांड लोगों की प्रोपेंसिटी पे डिपेंड करती है ना। अगर हम लोगों की हैबिट ही ज्यादा खर्चने की हो जाए, ज्यादा मार्केट जाने की हो जाए, हमारी आदत बन जाए कि नहीं हमने खर्च करना है, वी हैव टू गो टू मार्केट, जरूरत है नहीं है, बस वैसे ही आदत पड़ गई, मतलब हमारी हैबिट इस तरह की हो जाए, तो अगर अवर इंटेंशंस, अवर हैबिट, अवर डिजायर, अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स शॉपिंग वो बढ़ जाता है, हमारा शौक बढ़ जाता है, चलो और कुछ काम नहीं लग रहा है तो चलो बाजार चले जाएं, तो अब जाएंगे तो कोई एक आधी चीज लेके ही आएंगे, वैसे तो नहीं घूम के आ जाते मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ लेके ही आते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आम तौर पे नॉर्मली पीपल देयर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीजेस, तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, वो जाएंगे कुछ खर्च करेंगे, डिमांड करेंगे, तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। सेकेंड इज रिडक्शन इन टैक्सेस। रिडक्शन इन टैक्सेस का मीनिंग होता है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो अपने बजट में लोगों के ऊपर जो भी टैक्स इम्पोज करते हैं, सपोज गवर्नमेंट ही अपने टैक्स लेवल को रिड्यूस कर दे, तो देन व्हाट विल हैपन, जो पैसे गवर्नमेंट अर्लियर इट वाज टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, नाउ इफ दैट अमाउंट इज रिड्यूस्ड, तो देन पीपल विल बी लेफ्ट विद मोर डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के पास पैसे बच जाएंगे। जब आप और मैं 100 रुपीज हमारी इनकम हो, 10 रुपीज हम टैक्स दे रहे हैं, बाद में गवर्नमेंट कहे कि ठीक है जी 10 रुपीज टैक्स नहीं देना, आप 6 रुपीज टैक्स दो, तो हमारे पास 4 रुपए एक्स्ट्रा बच जाएंगे। 10 की बजाय अब हमारे पास मतलब 6 रुपीज हमने दे दिए टैक्स और 4 रुपीज बच गए, तो अब हमारी इनकम बढ़ गई। नाउ इनकम जब भी बढ़ती है दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। अब हमारी मर्जी है हम उसको खर्च करें बचाएं अपनी मर्जी। तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज ज्यादा लोग खर्च कर लेते हैं, तो अगर government reduces taxes, then people left with more disposable income, they can demand more, they can buy more, तो ये भी this can be also one of the reason. Next है increase in government expenditure. Now government अगर अपने जो भी welfare के काम है, investment के काम है, कोई भी public spending करती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, कुछ भी है, जो भी काम गवर्नमेंट करती है, स्पेंडिंग करती है, एक्सपेंडिचर, तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट ऑल्सो बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। बाजार से सारा कुछ तो नहीं, गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट पीपल, सारा कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ऐसा तो नहीं है। many things are there which are many majority of things are there which are being produced by private sector people। ठीक है। तो गवर्नमेंट भी तो कोई सामान खरीदना है तो मार्केट से ही परचेज करेगी। मान लो कोई रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, तो रोड बनाने के लिए जो भी वो चारकोल चाहिए, बजरी चाहिए, जो भी लेबर चाहिए, जो भी सामान है, वो सारा बाजार से किसी लोगों से खरीदेगी ना। तो जब गवर्नमेंट बाय करती है, परचेज करती है, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज ऑल्सो एडिंग, गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट्स रोल इन इंक्रीजिंग द डिमांड। तो चीजों की डिमांड नॉर्मली बढ़ जाती है अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करती है, वन ऑफ द अदर रीजन। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कब होती है, पिछले लेसन में हमने किया था। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, अगर आपको याद हो, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, मैं अपना आपका एग्जांपल लेती हूँ, अगर मार्केट में लोन सस्ते मिलने शुरू हो जाए, इंटरेस्ट कम हो जाए, तो आम ही लोगों की कोशिश होगी कोई नहीं उधार ज्यादा ले लो, काम में लगाओ, कि कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो if there is less rate of interest in the market, then there will be more demand for money for investmental purposes। तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मतलब फिर अपना जो भी काम में लगाना है, तो कोई चीजें खरीद के ही काम में लगाएंगे ना, फिजिकल कैपिटल की फॉर्म में। दूसरा हो सकता है कि अगर इट इज एक्सपेक्टेड कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, मतलब जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, कि काम में जब हम मनी लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे हमें फ्यूचर में फायदा होगा, एडवांटेज होगा, पॉजिटिविटी, हमें पॉजिटिव इंट्यूशन हो रही है कि विद अवर इन्वेस्टमेंट हमारी प्रोस्पेक्टिव यील्ड जो है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे वर्ड, दिस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स।
एक्सपेक्टेड मतलब हमें लग रहा है, हमें इंट्यूशन होती है कि हमें फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो भी हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा की जाती है फिजिकल फॉर्म में। इन्वेस्टमेंट जो भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं यहाँ इकोनॉमिक्स में, उसका मतलब है फिजिकल इन्वेस्टमेंट, मशीन की फॉर्म में, फैक्ट्री की फॉर्म में, टूल्स इक्विपमेंट, जो भी फिजिकल सामान बनाने के लिए चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं से खरीदा जाएगा। दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। यहाँ डिमांड का मतलब ये नहीं कि ओनली दो थिंग्स डिमांड की जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं। इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर्स आल्सो मेक डिमांड। देयर डिमांड कौन सी होती है? देयर डिमांड इज ऑफ डिमांड ऑफ कैपिटल गुड्स। याद है वेरी फर्स्ट लेसन में किया था, प्रोड्यूसर्स को वो मशीनों की डिमांड करते हैं। जैसे हम लोग घरों के सामान की डिमांड करते हैं, तो जो बिजनेसमैन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो मशीनों की, अपने जो भी काम में उनके टूल्स लगते हैं, उन चीजों की डिमांड करते हैं। तो डिमांड सभी चीजों की। सो एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज। नेक्स्ट इज फॉल इन इंपोर्ट्स। फॉल इन इंपोर्ट्स का मतलब है कि अगर इंपोर्ट कब किया जाता है, एक सिंपल लॉजिक है, जब या तो कोई चीज हमारे कंट्री में ना बनती हो, या ड्यू टू एनी नेचुरल रीजन है ही नहीं है, तो हम डिमांड करते हैं। मान लो पेट्रोल, यहाँ इंडिया में पेट्रोलियम इतना ज्यादा नहीं है, तो गल्फ कंट्री से मंगवा लेते हैं। ठीक, एक तो ये कारण है नेचुरल रीजन। सेकेंड रीजन है कि मान लो कोई चीज अपने यहाँ भी है, बन रही है, तो बाहर भी किसी फॉरेन कंट्रीज में बन रही है, तो इन दैट केस कंपैरेटिव एनालिसिस इज मेड। ये देखा जाता है कि अपने यहाँ वो चीज बनाने में खर्चा ज्यादा हो रहा है, या अगर हम फॉरेन से मंगवा लेते हैं तो खर्चा ज्यादा हो रहा है। दोनों को कंपेयर करना है। अगर अपने यहाँ वो जो भी चीज है वट उसको बनाने में मान लो हमारे होते हैं खर्च 100 रुपीज, ठीक है, और अगर वही चीज सेम क्वालिटी, सेम एवरीथिंग सेम, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री से उसको मंगवा लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो मान लीजिए हमारा खर्च होता है 90 रुपीज। ठीक है, तो अब आप सोच के देखिए, बीइंग इकोनॉमिक पर्सन, अब हमारा कहाँ पर कोशिश होनी चाहिए? कोशिश ये होगी जहाँ से हमें सस्ती पड़े। उसमें ये नहीं देखते कि अपनी कंट्री की चीज है, ऐसा कुछ नहीं। उस समय हमने मनी को देखना है कि हमारा खर्चा कहाँ बच रहा है। तो इफ एनीथिंग इज इजिली अवेलेबल एट लेस प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट, और अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में अपने कंट्री के अंदर वो महंगी पड़ रही है, तो नॉर्मली दैट थिंग इज इम्पोर्टेड, बजाय अपने पास से ज्यादा खर्चा करने के। ठीक, तो अगर ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब इन अदर कंट्रीज, कोई चीज हमें इजिली अवेलेबल है एट लेस प्राइस, तो देन दैट थिंग इज इम्पोर्टेड, उसकी डिमांड ज्यादा कर ली जाती है। तो फॉल इन इम्पोर्ट्स। और अगर वही चीज महंगी हो, अपने यहाँ 100 रुपए की पड़ रही है और बाहर से मंगवाएं तो 150 रुपए की पड़ रही है, तब वो चीज को नहीं मंगवाया जाएगा, तब वो महंगी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर है फॉल इन इम्पोर्ट का मतलब है कि अगर अपने कंट्री के अंदर वो चीज बनानी हमें चीपर पड़ रही है और बाहर से मंगवाई महंगी है, तो इन दैट केस our demand for domestically produced goods will increase. हम महंगी चीज नहीं मंगवाएंगे। तो this can also be one of the reasons for increase in aggregate demand. Another is rise in exports. Rise in exports का मतलब है, अब इसका भी एक यही रीजन है, जैसा लॉजिक हम अपने लिए लेते हैं ऐसे ही फॉरेनर्स भी लेते हैं। अगर फॉरेनर्स अपने कंट्री में सामान बनाए, उनको महंगा पड़े, और इंडिया से मंगवा लें, उनको सस्ता पड़े, तो दे विल मेक मोर डिमांड फॉर थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जब वो इंडिया की बनी चीजों की डिमांड करते हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो गए? हमारे हो गए एक्सपोर्ट्स। तो इसका मतलब अगर इंडिया में बनी हुई चीजों की बाहर फॉरेन कंट्रीज में डिमांड ज्यादा है, दैट मीन्स अवर एक्सपोर्ट्स आर मोर। दैट आल्सो दैट इज ए वे टू आइडेंटिफाई कि भाई हमारी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। इट डज नॉट मैटर कि वो डिमांड कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं कि फॉरेनर्स कर रहे हैं, सामान तो बिक ही रहा है ना। कौन सा सामान बिक रहा है? जो इंडिया के अंदर बनाया गया है, हमारे कंट्री का सामान है। तो अगर एक्सपोर्ट्स की राइज हो जाए, मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाए, तो भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक, लास्ट है डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग, ये आपको याद हो चैप्टर बजट वाले में हमने किया था ना, जब गवर्नमेंट इज इन नीड ऑफ मनी, लोन लेना होता है कोई, तो गवर्नमेंट मे बोरो फ्रॉम आरबीआई ऑल्सो। तो व्हेन गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम आरबीआई, then RBI keeps some security from the government, takes some security, कुछ collateral रख के, कोई सेविंग के कुछ सर्टिफिकेट रख के, देन आरबीआई इशूज न्यू करेंसी, नए नोट छाप करके नई करेंसी इशू करके गवर्नमेंट को वो लोन के तौर पे देता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली टेक्स हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ मेजर, डिफिसिट फाइनेंसिंग बार बार करती है, तो देन व्हेन दैट मनी कम्स इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, अल्टीमेटली इट कम्स इन सर्कुलेशन। हैंड ऑफ गवर्नमेंट मतलब ये नहीं कि कुछ रख लिया किसी जगह, अल्टीमेटली गवर्नमेंट उसी पैसे से फिर कोई
कंस्ट्रक्शन के काम, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई ना कोई अपने काम स्टार्ट करती है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मनी कम्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड इनकम, तो वो इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। तो तब भी जब पैसे लोगों के पास आते हैं, ऑब्वियसली देयर डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज, वो भी कुछ ना कुछ चीजों की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे। ठीक, तो ये सारे रीजंस हैं। 7 पॉइंट्स आर गिवन। एट द मोस्ट 4 मार्क्स के पॉइंट्स आ सकते हैं। वैसे जो सारे कर सकते हैं वेरी गुड, जो बच्चे नहीं कर सकते सारे, दे कैन डू फर्स्ट 4, क्योंकि सम स्टूडेंट्स में फेस सम डिफिकल्टी इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उनको नहीं पता चलेगा, एकदम क्विकली नहीं आता कि कौन सा राइज है कौन सा फॉल है, तो इट इज सजेस्टेड फॉर देम दे कैन डू फर्स्ट 4 पॉइंट्स ऑल्सो। अदरवाइज आप सारे जो बच्चे पूरा करें वेरी गुड। ठीक, बस ये हो गया इसका रीजंस। आगे है इसका इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट मैंने पहले ही बताया। इस केस में